हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है अध्याय 3, जिसमें हम आज मॉडर्न वर्ल्ड 1 करेंगे यानी जो है आधुनिक विश्व 1 करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में मॉडर्न वर्ल्ड है तो ये सिलेबस जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, Modern World 1. The Modern World 1, there is a most important chapter. But there is a first point here, impact of decline of feudalism. Impact of decline of feudalism here. During the Middle Ages, one of the most important institution was a feudalism. There is a most important institution where feudalism. You have a read about it is a detail in a preview lesson. Feudalism as an institution flourished in Europe for many centuries. But with the rise of the middle class, it started to be declined. There is a middle class here started to decline. A rise of powerful kingdom as well as warfares between to the federal lord and further lead to be a decline. Emergence of new towns and cities and the level of the trade also lead to degradations of federal system. These towns were centers of production and were governed by the selected representatives. The atmosphere of the town was free from federal destruction and control, as people were free to go anywhere and to be take up any profession. You know that there is a most important point here. The atmosphere of the town was there free from a federal destruction and control, as a people were free to go anywhere to be take up any profession. The town attractive artisans and peasants from a rural area because they provide better prospect of living and acting as a refuge from a federal the explorations. And this town or city encourage their production of many crops such as a cotton, sugar cane. There is a here important encourage there is a production of cotton and sugar cane. Peasant where is a paid is the case from their product. The manufactured goods were sold in the market where many was the medium of exchange. The Lord began to accept many for their vessels as instead to a service, as there also needed to make money to buy of various luxury commodities. There is a various luxury commodities, and this lead to there is a rise of a powerful merchant class on this period of time. They now began to aspire for a higher status in the social hardships. The hierarchies is important. There is began to be support the powerful marches to be undermine their position of the federal lord, which began their federal structure and led to be a decline of the federal order. यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, कहते हैं आधुनिक विश्व 1। देखिए, आधुनिक विश्व के अंतर्गत हम ये जो है चैप्टर करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आया है
समतावाद के पतन के प्रभाव यानी फेडरलिज्म के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे। समतावाद के पतन होने के कारणों पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे। अगर हम बात करें मध्यकालीन युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक जो था समानतावाद था। समानतावाद यानी फेडरलिज्म, आपने इसके बारे में पिछले पाठ में विस्तार से पढ़ा था। समानतावाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दी तक फलता फूलता रहा, लेकिन मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही इसका पतन शुरू हो गया। क्योंकि देखा जाए जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो इसका पतन होना स्वाभाविक बन गया। कहते हैं शक्तिशाली राजाओं के उदय तथा समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध होने से इसका पतन जो है शुरू हो गया, और नए नगरों और शहरों के उदय होने तथा व्यापार के जो है पुनरुद्धार से जो है समानतावाद का विघटन भी देखने को बखूबी मिला। और ये नगर उत्पादन का केंद्र भी थे तथा इन पर जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण भी पूरी थी, और इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण समानती प्रतिबंधों से मुक्त था, क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है समानतावाद, क्योंकि इस समय जो लोग थे कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे और कोई भी व्यवसाय अपनाने के लिए भी स्वतंत्र थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और ज़रूरी भी आता है। नगरों ने कारीगरों और किसानों को उत्कृष्ट भी किया, क्योंकि उन्होंने जीवन के बेहतर संभावनाएं जो है उपलब्ध कराया तथा समानती जो है शोषणों से छुटकारा भी दिलाया, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। इन नगरों और शहरों को कपास और गन्ना के रूप में कई फसलों के उत्पादक और प्रोत्साहन भी किया गया। यानी देखा जाए तो नगरों में जो है शहरों ने कपास और गन्ना के फसलों को उत्पादन के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। कहते हैं कृषकों के अपने उत्पाद का नगद भुगतान भी मिलता था, विनिर्मित वस्तुओं के बाजार में बेचा जाता था, और जहां विनिमय का माध्यम पैसा होता था। स्वामियों ने अपने जागीरदारों से जो है सेवाओं के बजाय पैसा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि विभिन्न उपभोग की वस्तु खरीदने के लिए उन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती थी, और इससे शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वामियों ने अपने जागीरदारों के सेवाओं के बजाय पैसा लेने के शुरू कर दिया, जिससे इसके कारण क्या हुआ, विभिन्न जो है उपभोगों की वस्तु खरीदने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी, और इससे जो है शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। अब उन्होंने जो है समाज में बेहतर रुतबा रखने की लालसा होने लगी। उन्होंने जो है समानताओं में स्वामियों की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए शक्तिशाली सम्राटों को समर्थन देना आरंभ कर दिया। ये वही समय काल था जहाँ पर जो है सम्राटों का समर्थन जो है आम व्यापारी दिया करते थे, जिसके वजह से जो है सम्राटों की शक्ति दिन दोगुनी चार गुनी हो गई, जिससे समानती संरचना कमज़ोर हो गई, और इससे समानती वर्ग का पतन होना एक स्वाभाविक बना दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। The next topic is the most important here, Renaissance. Renaissance, there is an important here. The modern period is unheralded. There is the end of age of faith and beginning of the age of reason. It is a witness is a moment like a resonance and is a reformations, and this moment is about many change in the culture, intellectually, religion, social and political life of the people all over the world. There is a most important point here. The moment about many change in the culture, intellectually is a religious, social and political life of the people all over the world. This period is also characterized by the urbanization and faster means of transport of communication, democratic system and uniform law based on equality. There is a important point here. The period is characterized by their urbanization, faster means of transport and communication, democratic system and informal law based on equality. The literal means of Renaissance is a rebirth. The Renaissance is meant here a rebirth. It is started Italy around the 14th century AD. Italy was divided into the small city states at that time. Many of them were built on the run of the ancient Roman buildings. The geographical position of Italian cities has made them a great trading and intellectually
centers. Moreover, the position of Italian cities such as Venice made them to center of trade and that is actually the a crossroad. Many great idea along with the wealth were about by a merchant from far corner of their globe. The new form of political and social organization give a politically freedom and a suitable atmosphere for academic, artistics and culture is an advancement. People had a more looser time of study and other activity. That is also important here. This was also a period of great economical expansion. Many commercially and financial techniques were developed for trade and practice like a bookkeeping, bill of exchange, and public debt. That is the most important in this time. Whenever to the Italy has become a center of science, that's important. You know that there's an important question here. The whenever Italy has become a center of science, you know, Italy has become the center of science. The major development of this time where is the reveal of urban life, commerce based on private capital, banking, formation of nation state, and also is exploration to find new routes and territory and the development of vernacular literatures which is popularized by there is a printing press. This new urbanized society was a less article and more concerned with a cellular objective. It was a sharp contrast to the earlier ruler traditions born in society. That is important. The adventure on exposure play a significant role in opening and world economical system. Many new accommodates were about from America, Asia, and Africa after the discovery of trade routes. There is also important. These courses enhanced their life for Europeans and inspired them to develop a new way of producing them a large number of make a profit. There is a large number of make a profit. The result was a merchant, entrepreneurs and banker joined to the hand and the capital and come to enjoy an important position in their political life as well as a relation with other country. That is also important. The new idea that is generated in the spirit like humanism, relationalism, and there is a spirit of inquiry and the growth of profound a change in the thinking pattern of the people. There is a important time for the idea and generate of spirit like humanism, rationalism, and the spirit of inquiry brought a performing to change in the thinkings and pattern of people. There was a renewed interest in the culture achievement of classical Greek and Roman civilization. There is a classical Greek and Roman civilization. Human being become the center concern. There are new scholar and they believed in the creative potential of the human beings and their right to be a sick joy and the pleasure to the world itself. This was a contrast to be the belief of medieval church, which is opposed to worldly pressures. This respect of human beings encourage interest in art, history, language, literature, ethics, etc. That is the most important for the respect for the human beings encourage interest of art, history, language, literature, and ethics also. Do you know that was at the time that discipline is grouped under to the humanities were born. The spirit of humanism also found to expression in the field of art and literature. Their greatest achievement of Renaissance artists were in the field of painting. The painter studied their anatomy, their proportions of the human body. They want to be human being to be painted in their last from the proportion. Some of the outstanding artists were Leonardo was Vacas and Michelangelo and Raphael and Botticelli and the Titan. There is a most important artist in this period time. There is a maximum. There is an important. Leonardo is Duvescal. There is some important. Even the field of captures artists began to make a freestanding statue, and this is a
sculptures is now stood apart from a building or a background and were a separate work of art. The first great Renaissance is a sculptor, the Donatello, who is made to the statue of David. That is important. And also here see there are Mona Lisa on diagram. There is a beautiful smile on this picture, and there is a Mona Lisa. There is world famous painting. There is a on this Renaissance time. The national identity as grey or stronger. This was reflected in the development of modern European language such as the Italian, Spanish, French, German, English, etc. There is the most important language in this period of time as the language of literature. Now the writers used to be local language in poetry and drama, prose, etc. There is a local language used here instead of Latin word. The work of Renaissance is the author become accessible to large number of people due to use of vernacular language and introduction of printing press. The Bible is printed and read by a large number of people, and several works that were produced in a modern European language were Dante's is a divine comedy, comedy and the Horatio and the Paris of the Follies. Machiavelli is their princess of Caravans and Du Quixote. That's important. Two major developments took place in the history of Europe toward the later part of the Renaissance. And the first is a Protestant Reformation, which resulted in their spirit in the Christianity. The second development of concern for reform within the Roman is a Catholic Church. Generally referred to be a Catholics is a reformation of counter-reformation. And Reformation was a part of social, religious, and political movement which led to be a emerge of the modern world. There is a important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पुण्य जागरण। देखिए पुण्य जागरण काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर पेंटिंग के लिए खासकर काफ़ी ये प्रचलित था। लेकिन पुण्य जागरण काल को हम ऐसे ही पेंटिंग के साथ साथ कई और चीज़ का डेवलपमेंट हुआ जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो पुण्य जागरण काल जो है आधुनिक काल के प्रारंभ में विश्वास युग के अंत और तर्क युग के शुरुआती हुई। यानी देखा जाए तो आधुनिक काल के आरंभ से जो है विश्वास यानी विश्वास युग के अंत और तर्क युग की शुरुआत हुई। यह कहते हैं नव जागरण और सुधार आंदोलन के साक्षी है। देखा जाए तो नव जागरण तो हुई प्लस सुधार आंदोलन का भी ये साक्षी है। और इन आंदोलन से लोगों के संस्कृति, वैदिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए जो कि काफ़ी चकित भी किया। और इस अवधि में शहरीकरण परिवहन के तीव्र साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर सामान्य कानून और लक्षणित किया गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए इस समय काल में शहरीकरण तो हुआ ही हुआ, साथ में परिवहन के तीव्र साधन भी विकसित हुए प्लस संचार के साधन के साथ जो है लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर सामान्य कानून जो है लक्षित भी किया गया जो कि पुण्य जागरण काल के समय काल में था। पुण्य जागरण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य जन्म यानी रिबर्थ। रेजोनेंस मीन हियर अ रिबर्थ यानी पुण्य जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य जन्म। और यह इटली में 14वीं सदी के आसपास आरंभ हुआ था और उस समय इटली छोटे शहर राज्यों में विभाजित था। उनमें से कई शहर जो है प्राचीन रोमन इमारतों के जो है भाग्यवशेषों पर बनाए गए थे। इतालवी शहरों के जो है भौतिक स्थिति में उन्हें महान व्यापार और वैदिक केंद्र भी बना दिया गया था। इसके अलावा वेनिस जैसे इतालवी शहरों की स्थिति ने उन्हें व्यापार और वैदिक केंद्र बना दिया था और धन के साथ विश्व के चारों कोनों में व्यापारिक कई महान विचार लाए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन नए रूप ने राजनीतिक स्वतंत्रता अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण भी बनाया। कहते हैं लोगों के पास अध्ययन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था। और कहते हैं पुण्य जागरण बहुत महत्वपूर्ण समय काल था जिसे हम पुण्य जन्म के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। यह भी अत्यधिक जो है आर्थिक विस्तार की अवधि थी
कहते हैं बुक कीपिंग्स और बिल का आदान प्रदान तथा सरकार इन कई जो है वाणिज्यिक और वित्तीय तकनीकें विकसित की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि वित्तीय तकनीकें जो है विकसित इस समय की गई और इनसे जो है इटली पुण्य जागरण का केंद्र बन गया और इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुण्य उत्थान और वाणिज्य के आधार पर जो है निजी पूंजी बैंकिंग। कहते हैं राष्ट्र राज्य के गठन और अन्वेषण के लिए नए मार्गों और प्रदेशों का स्थानीय भाषा और साहित्य के विकास को जो जो हमें प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस भी थी जो कि स्थानीय भाषा साहित्य के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिया। यह नया व्यापारिक समाज कम जो है पदानुक्रमित और जो है अधिक धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक भी बनाया। यह पहले से ग्रामीण परंपरावादी समाज को अत्यधिक जो है विपरीत था। कहते हैं विश्व आर्थिक प्रणाली आरंभ करने में सहायक कार्य एवं खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समय काल जो था परंपरावादी समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और कई नई वस्तुओं के जो है व्यापार मार्ग की खोज के बाद अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में कई नई वस्तुएं भी लाई गई इस समय के दौरान और इन वस्तुओं को जो है यूरोपवासियों के जीवन के समृद्ध बनाया और अधिक लाभ कमाने के लिए जो है उत्पादन के नए तरीके विकसित करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रेरित भी किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारी उद्यमियों और जो है बैंकरों ने सहयोग किया और राजनीतिक जीवन में तथा अन्य देशों के साथ संबंधों में पूंजी में महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। तो इस समय काल जो थी वो व्यापारी उद्यमियों और बैंकरों के सहयोग काफ़ी मिली, तो ये महत्वपूर्ण भी था। इसी अवधि में सूचित नए विचार यथा जो है मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना से लोगों के सोच में गहरा परिवर्तन देखने को मिला। कहते ग्रीक और रोमन साम्राज्य की संस्कृति उपलब्धियां नए सिरे से रुचिकर हो गई। मनुष्य ने नए विद्वानों के जो मुख्य चिंता का विषय बन गए और वो मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता और नई संसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक उनके अधिकारों में विश्वास भी रखते थे। यह मध्यकालीन चर्च के विश्वास के विपरीत था, जो सांसारिक सुखों का जो है विरोधी भी थे। मनुष्य को इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य और नीति शास्त्र आदि में रुचि को काफ़ी बढ़ावा भी दिया, क्योंकि देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए भी था क्योंकि कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र आदि में लोगों की रुचि भी बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि इस समय विषय को जो है मानविकीय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मानवतावाद की भावनाओं के कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अव्यक्त मिली। कहते हैं पुण्य जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां इस समय के दौरान चित्रकला थी। कहते हैं चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की और चित्रकारों ने जो है शरीर रचना और मानव शरीर की जो है अनुपात का भी अध्ययन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वे मनुष्य को जो है यथार्थवादी फॉर्म और अनुपात में चित्रित करना चाहते थे और कुछ श्रेष्ठ कलाकारों ने जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल बार्टोलोसे और जो है टाइटेनियम और जो है मूर्ति कला के क्षेत्र में भी कलाकार मुक्त खड़ी जो है मूर्तियां बनाकर शुरू कर दिया। यानी देखा जाए लियोनार्डो दा विंची ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और देखा जाए तो इनके जो तस्वीर हैं, चित्र हैं, वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और ये मूर्ति एवं इमारत या पृष्ठभूमि से अलग खड़ी थी और यह अलग कला भी थी। ये कला जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उस पुरातन समय से काफ़ी महत्वपूर्ण कला थी ये सारे। पुण्य जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार जो थे लियोनार्डो ने थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी, जो लोगों में खुद ही मध्यकालीन धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त करना शुरू कर दिया। कहते राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधुनिक यूरोपीय भाषा इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी आदि को जो है साहित्य की भाषा के रूप में जो परिलक्षित भी किया गया। अब लेखक लेटनों के बजाय स्थानीय भाषा में कविता, नाटक, गंध आदि का उपयोग करने लग गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके आरंभ होने के कारण लोगों के एक बड़ी संख्या के लिए जो सुलभ भी हुई। बाइबल मुद्रित किया गया था और लोगों के बड़ी संख्या द्वारा पढ़ा भी गया। आधुनिक यूरोपीय भाषा में तैयार किए गए अनेक कार्यों में दो प्रमुख
थे, जो कि ज़रूरी भी था। यहाँ पर आप मोनालिसा का तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसको जो है लियोनार्डो दा विंची के जो है मोनालिसा का चित्र जो है बनाया था। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसके स्माइल, यानी स्माइल करने की जो एक अलग एक अद्भुत जो है दृश्य प्रस्तुत करता है, ये लियोनार्डो ने बखूबी इस चित्र में प्रस्तुत किया। और लग रहा था कि जैसे मोनालिसा का चित्र जो है स्वयं ही हंस देगी, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट में ही एक विचित्रता को दर्शाई गई। तो ये इस समय काल में जो चित्रों की जो देखा जाए तो चित्रों में पुण्य जागरण का काल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, और चित्रों में ही जागरण देखने को मिला, जैसे कि चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हो भली भांति। कहते हैं डेंटो की डिवाइन कॉमेडी और इरासमाय इन पेज ऑफ फेलिस मैकियावेली की द प्रिंस एंड करवेंटीज डायनोसिस जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और पुण्य जागरण के जो उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुआ। पहला जो था प्रोटेस्टेंट सुधार था, जो ईसाई धर्म में विभाजित का परिणाम। दूसरे रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर से संबंधित सुधार था। आमतौर पर कैथोलिक सुधार या काउंटर सुधार के रूप में माना जाता है। कहते हैं सुधार सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था, जिसे आधुनिक विश्व का उत्पत्ति भी कहा जा सकता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था पुण्य जागरण, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये पुण्य जागरण की बातें समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का दिल से है सहायता करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है आपके मोबाइल में ये चैनल सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। और हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है प्रावधान भी है। इवन कि आपके सुविधा के लिए जो है तिरपान स्टडी सेंटर ने प्लेलिस्ट का भी प्रावधान किया है, जहाँ पर सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज या क्लास वाइज दिख जाएंगे, जो आपके विकास के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इवन कि तिरपान स्टडी सेंटर ये भी कहता है कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप शोर शराबा में समझोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। कभी भी हम कोई चीज़ समझना चाहते हैं या बनाते हैं, उसको शांत समय में बनाना चाहिए, शांत समय में देखना चाहिए। तो ये आप पे भी लागू होता है। अगर आपको इसके शब्दों को समझना है, सोचना है, तो आप जितना हो सके शांति क्षेत्र में ही इसका अनुसरण करें, जो आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। तभी जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है। अगर कुछ शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ विचारधारा रखना चाहते हो, तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो है बहुत कुछ में सुधार किया जा सकता है।